اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت میں ریاست گجرات کے سفر پر ہوں اور آج گجرات کے انکلیشور سے 4 کلومیٹر قریب پر ایک بستی ہے جونا دیوا گاؤں، وہاں پر مسجد نور کے پاس انشاءاللہ آج ایک بہت ہی اہم پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ مرحومہ فاطمہ ابراہیم گنگات، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک شاندار پروگرام وہاں پر ہونے جا رہا ہے۔ میں انکلیشور، دیوا اور آس پاس کے تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس پروگرام میں ضرور شریک رہیں اور فائدہ اٹھائیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ سفر کو آسان کرے، اللہ طاقت دے، ہمت دے اور ہر طرح سے حفاظت کرے، کیونکہ لگاتار ایک بھی دن خالی نہیں ہے۔ سبھائیں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بی جے پی کا مقابلہ اور نریندر جی مودی کی جو گھٹیا پالیسیز ہے اس کے خلاف میں زوردار انداز میں بول رہا ہوں، اس لیے تھوڑی سی تکلیف بھی ہے۔ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس تکلیف سے اللہ نجات عطا فرمائے اور طاقت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نے اسرائیل کو ہتھیار بھیجے ہیں، یعنی بھارت نے غزہ جنگ میں پھنسے اسرائیل کو ہتھیار بھیجا ہے۔ بھارت نے یہ قدم ایسے وقت اٹھایا جب امریکہ نے اسرائیل کو ہزاروں بموں کی فراہمی روک دی ہے۔ حماس کے ساتھ گزشتہ 8 ماہ سے جاری جنگ میں اسرائیل کے ہتھیاروں کا ذخیرہ خالی ہو گیا ہے۔ اس نے دوست بھارت سے مدد مانگی، بھارت نے اسرائیل کو ہتھیار بھیجے بھی ہے، لیکن اب اسپین نے جہاز کو اپنی بندرگاہ پر رکنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس تجارتی جہاز میں 27 ٹن دھماکہ خیز مواد لدا ہوا تھا اور اسے بھارت سے بھیجا گیا تھا۔ اسپین نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کو امن کی ضرورت ہے، نہ کہ مزید دھماکہ خیز مواد کی۔ ڈنمارک کے پرچم والے اس جہاز کو اس کی بندرگاہ پر رکنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جہاز بھارت سے بھیجے گئے 27 ٹن دھماکہ خیز مواد سے لدا ہوا تھا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی کہ حضرت مولانا توقیر رضا خان کو آخر عدالت سے بڑی راحت مل گئی ہے۔ اشتعال انگیز تقریر، بھڑکاؤ بھاشن کا مقدمہ مولانا توقیر رضا خان پر درج نہیں ہوگا۔ مقامی عدالت نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے وکیل کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، اس سے مولانا توقیر رضا خان کو عدالتی کارروائی سے راحت ملی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت نے مولانا کو 2002 کے فسادات کیس میں
में भी मुलजिम बनाया है। इसमें उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा। मौलाना अदालत में पेश नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रोक दी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि मकामी अदालत का ये फैसला आया है कि इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा मौलाना पर दर्ज नहीं होगा। मौलाना के खिलाफ शहर का माहौल खराब करने और फसादात भड़काने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जो दरखास्त थी, मकामी अदालत ने उसे मुस्तरद कर दिया, जिससे मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को बड़ी राहत मिली है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त यूं समझिए कि एकदम नफरत अंगेज बातें कर रहे हैं। इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स, पीएम के दर्जे का शख्स, उस कुर्सी को जलील और रुस्वा कर रहा है। लगातार हिंदू मुसलमानों में नफरत और मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर मोदी जी अपने भाषणों में बात कर रहे हैं। विकास के मुद्दे, तरक्की के मुद्दे, बेरोजगारी को खत्म करने, महंगाई को खत्म करने के मुद्दे मोदी की तकरीर में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। और मोदी ने जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाई है, इसको लेकर मोदी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन FIR नहीं ली गई, जिस पर अदालत ने, दिल्ली की साकेत मेट्रोपॉलिटन अदालत ने गुज़िश्ता कल सीनियर सहाफ़ी कुर्बान अली की अर्जी पर समाअत करते हुए दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन से नफरत अंगेज तकरीर के मामले में वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ शिकायत से मुताल्लिक रिपोर्ट मांगी है। यानी अदालत ने कहा है कि मोदी के खिलाफ आखिर FIR क्यों नहीं ली गई। मिस्टर कुर्बान अली ने 21 अप्रैल 2024 को बांसवाड़ा राजस्थान में मुसलमानों को निशाना बनाने और अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के खिलाफ वर्जी करने पर मोदी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मालेगांव 2008 बम धमाका मामले को लेकर खबर आ रही है कि मुलजिमीन के बयानात का इंदराज अब आखिरी मराहिल में है। सिर्फ 2 मुलजिमीन ने अदालत से दिफाई गवाहान को तलब करने की इजाजत मांगी है। खराबी सेहत की वजह से गुज़िश्ता कई सुनवाई में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 313 के बयान पर हस्ब साबिक दस्तखत करने के बजाय अंगूठा लगा रही है। मुलजिमा ने अदालत को बताया कि सेहत की खराबी और कमजोरी की वजह से उसके हाथ की ताकत तकरीबन खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से दस्तखत करने में उसे दिक्कतों का सामना है, लिहाजा उसे अंगूठा लगाने की इजाजत दी जाए। अदालत ने उसकी इजाजत मंजूर कर ली, जिसके बाद से मुलजिमा दस्तखत करने के बजाय अंगूठा लगा रही है। हालांकि आपको याद होगा कि मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कभी क्रिकेट खेलती हुई नजर आती है, तो कभी वॉलीबॉल खेलती हुई नजर आती है, तो कभी हॉकी खेलती हुई नजर आती है, मगर अभी फिलहाल हाथों में सिग्नेचर करने की भी ताकत नहीं है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि रियासत महाराष्ट्र में इस वक्त महाविकास अघाड़ी में शिवसेना साथ है उद्धव ठाकरे जी की, और आप देख रहे हैं कि मेरे जैसे कई उलमा बाकायदा शिवसेना के साथ नजर आ रहे हैं, और मुसलमान तकरीबन तमाम के तमाम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ महाविकास अघाड़ी में जहां जहां शिवसेना की सीट है, वहां पर मुसलमान भरपूर ताकत से शिवसेना का साथ दे रहे हैं। इसलिए उद्धव जी ठाकरे ने यह कहा कि शिवसेना मुसलमानों को साथ लेकर चल रही है और मुसलमान शिवसेना का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे ग्रुप पर सख्त अंदाज में हमला किया। मुल्क में लोकसभा इलेक्शन के 4 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है। 5वें मरहले के तहत 20 मई को वोट डाले जाएंगे। तमाम सियासी पार्टियां प्रचार प्रसार में मसरूफ है। इस दरमियान उद्धव ठाकरे ने शिवसेना तोड़ने वालों के साथ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि महाराष्ट्र गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। महाराष्ट्र उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने इस पार्टी को तोड़ने और चोरी करने की कोशिश की, जिसे बाला साहेब ठाकरे ने कायम किया था। नाज़रीन, राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं अमेठी से था, अमेठी से हूं और अमेठी से ही रहूंगा। इंडिया अलायंस की हुकूमत बनने के बाद अग्निवीर स्कीम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। राहुल गांधी ने खुलकर ये बात कही है। आप जानते हैं कि अग्निवीर स्कीम लाकर नरेंद्र मोदी ने जवानों के भविष्य को भी खत्म किया और फौज का भी अपमान किया।
खैर इस वक्त नरेंद्र जी मोदी चारों तरफ से फटकार का निशाना बन रहे हैं। अभी खबर ये भी आ रही कि सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल राय बरेली और अमेठी में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के समर्थन में वो मुहिम चलाएंगे। कांग्रेस राय ने बताया कि तीनों लीडर सबसे पहले रायबरेली में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे और मिस्टर राहुल गांधी के लिए मुहिम चलाकर वोट मांगेंगे। गांधी खानदान के 3 अफराद, उसके बाद पार्टी की रिवायती अमेठी पार्लिमानी सीट से पार्टी के उम्मीदवार KL शर्मा के हक में भी मुहिम चलाएंगे। नाज़रीन, आइए बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाइयों को वर्गलाने, बहकाने, उनका ध्यान भटकाने और उन्हें भड़काने और हिंदू मुस्लिम फसादात के लगातार बयानात दे रहे हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया है जिससे वो चाहते हैं कि हिंदू भाई बहक जाए। उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, कांग्रेस अगर आती है तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देंगी। वज़ीर आज़म मोदी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आई तो भाइयों बहनों वो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देगी और राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। यानी आप सोचिए नरेंद्र मोदी कितनी घटिया लेवल पर पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि ऐसा होना अब नामुमकिन है और कोई करना तो दूर की बात सोच भी नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी राम मंदिर के नाम पर भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस से डराने का, हिंदू भाइयों को बहकाने और डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं ने भी सोच लिया है कि मोदी की मक्कारी और मोदी का झूठ अब दुनिया के सामने आ चुका है और अब मोदी की बात पर खुद मोदी यकीन नहीं करते हैं। नाज़रीन, कांग्रेस का किला समझे जाने वाले रायबरेली में जुमा को इंडिया अलायंस के लीडरान, तमाम अहम लीडरान एक साथ जमा हुए। इस मौके पर राहुल गांधी के लिए मुनक्किदा इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए, भाषण करते हुए सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों से निहायत जज्बाती अपील की। उन्होंने कहा, सोनिया जी ने, कि मैं अपना बेटा आप लोगों के हवाले कर रही हूं, वो कभी आपको मायूस नहीं करेगा। इस जलसे आम में सोनिया गांधी के साथ रायबरेली लोकसभा से उम्मीदवार राहुल गांधी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव खुसूसी तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इस बात की मुझे बेइंतहा खुशी है कि मुझे एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों के दरमियान आने का मौका मिला है। आपने मुझे बतौर रुकने पार्लियामेंट खिदमात अंजाम देने का मौका दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा है। हमारे खानदान की जड़ें यहाँ की मिट्टी से 100 साल पुरानी जुड़ी हुई है। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए अलग ही मकाम था। उनके दिल में आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत थी। सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने राहुल और प्रियंका को वही तालीम दी है जो गांधी खानदान ने मुझे दी थी और मैं अब अपना बेटा आपके हवाले कर रही हूँ। मेरा बेटा आपको कभी मायूस नहीं करेगा। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, संजय दीना पाटिल की मकबूलियत से बीजेपी के खेमे में बड़ी घबराहट है। उस मौके पर प्रीति ने बयान करते हुए, भाषण देते हुए बड़ा प्यारा जुमला कहा कि मोदी को तो अब महिलाएं जवाब देंगी। ये लोकसभा इलेक्शन सच और झूठ, ईमानदारी और बेईमानी, मोहब्बत और नफरत के बारे में है और चाइना माल की तरह मोदी की गारंटी अब खत्म हो गई है। वजीर आजम मोदी 3 दिन में 2 बार मुंबई आ रहे हैं क्योंकि मोदी को अब महाराष्ट्र में अपनी हार नजर आ रही है। संविधान को खत्म करने की बात करने वालों को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। ये बयान मुंबई कांग्रेस के वर्किंग सदर चरण सिंह ने दिया है। नॉर्थ ईस्ट मुंबई महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल की मुहिम के लिए गोवंडी शिवाजी नगर में एक सभा का एहतमाम किया गया था। संजय दीना पाटिल की मकबूलियत को देखकर बीजेपी के खेमे में घबराहट का माहौल बन गया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि बीजेपी की एक कदावर नेता है, जी हाँ, स्मृति ईरानी। कभी कांग्रेस के जमाने में 1 रुपए अगर बढ़ जाता था गैस पर तो वो नागिन की तरह रो पर आ जाती थी और सिलेंडर लेकर, आपको याद होगा कि कैसे वो सिलेंडर लेकर नागिन की तरह हरकतें करती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, जहर उगलती थी।
जब 1 रुपये सिलेंडर पर बढ़ जाता था, लेकिन अब 450 का सिलेंडर स्मृति ईरानी के अब्बा हुजूर यानी बीजेपी और मोदी जी ने 1100 का कर दिया, मगर स्मृति ईरानी खामोश है। इसी को लेकर अमेठी में अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी पर सख्त वार करते हुए कहा कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं, यानी स्मृति ईरानी अब सरेंडर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला ने कहा कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसे अमेठी के लोग अब वोट नहीं देंगे, वो हमेशा के लिए स्मृति यादगार हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी के सरबराह ने कहा कि सबसे पहले नंद बाबा के मुकद्दस मकाम पर सलाम अकीदत पेश करता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी दुआओं से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से यहां से कामयाबी हासिल करेंगे और अब सिलेंडर वाले लोग यहां सरेंडर कर रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।